Jai Hind, dear students. I am Dr. Simar Mishra, Assistant Professor in Swami Vivekananda Subharati University. Today we had discussed about milk and milk product. So let's start. First of all, what is milk? Milk is maybe defined as whole, fresh, clean lacteal secretion obtained from complete milking, excluding that 15 days before and 5 days after calving. Second, composition of milk. Milk may be two parts. First of all, water. It is 88%. Second, टोटल सॉलिड, इसको टीएस भी कहते हैं, एंड 30 to 40% इन मिल्क. वाटर इज, you know very well water. TS in this part, fat, protein, carbohydrate, lactose, minerals, vitamins, all were in the total solid. Okay. Second is physical properties of milk. It is clear? Second is physical properties of milk. Physical properties of physical property of milk. Okay. First is in physical properties of milk, acidity. Acidity. एसिडिटी मीन्स अम्लता, खट्टापन जो मिल्क में होता है. दिस इज एसिडिटी डिसाइड द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क. ओके. फ्रेश मिल्क pH 6.5 से 6.7. ये what this temperature 25 degree centigrade. Milk is when 25 degree centigrade, तो acidity and pH 6.5 to 6.7. Okay. Second is viscosity. Viscosity depends on amount of fat, size and fat globules. Okay. Depends on the amount of fat, size of fat. Okay, it is clear. Third is freezing point. Milk is contained freezing point minus 0.55 degree centigrade. Minus 0.55 degree centigrade. Fourth is boiling point.
boiling point is 100.2 degree centigrade. Water is 100 degree centigrade boil, but milk is 100.2 degree centigrade पे boil करने लगता है. Okay, it is clear? Okay. In milk, contamination of milk and milk product. Contamination means समझते हो? Contamination means कि microorganism, bacteria, virus in present in milk, which decide the shelf life of milk. तो few types of microorganism present in milk. First of all, Streptococcus lactis. This is the microorganism. Second microorganism is Bacillus subtilis. Okay. Third is coliform bacteria. First of all, जो physical property, this is the microbial properties. Microbial property. Second is dealing with microbial property. Okay, it is clear. Next, types of milk. There are 5 types of milk. Which decide on fat and ethanol composition. So first type of milk, whole milk. In whole milk, 6% fat and 9% ethanol, we decided is whole milk. Whole milk, 6% fat and 9% ethanol. Ethanol means solid, not fat. Okay, clear? Second is standard milk. Standard milk, 4.5% fat and 8.5% ethanol. Third is tone
milk. In toned milk, 3% fat and 9% yes or no. Okay. Fourth is double toned milk. Double toned milk, 1.5% fat and 9% snuff. 5 is skim milk. Skim milk, SKIM skim milk. Skim milk skim milk 0.5 to 0.7% fat and they say 9 to 13% yes or no. Okay, it is the variation change होता रहता है इसका. Okay, it is clear. Write it. Toned milk is 8.5%. It is clear, write it. This is right. And discuss about milk products. Okay. Milk products based on two parts. First of all, fermented milk products. Second is non-fermented milk products. Okay. Fermented milk products like dahi, cream, butter, ghee. Non-fermented milk product is whole milk, flavored milk, etc. Third is heat coagulated product.
मिल्क प्रोडक्ट, खोआ, रबड़ी, पेड़ा, इट इज क्लियर? ओके। Write it. Any doubt? Okay. Write it. Clean this. Fermented milk product. So first of all, cream. Cream is the high fat component separated from whole milk as a result of creaming process. Write it. Cream is the high fat component separated from whole milk as a result of the cleaning process. Okay, it is a higher proportion of fat droplets of milk than regular fluid milk. Cream contains 18% milk fat or more. Definition is clear. Second is types of cream. Types of cream. First of all, light cream. लाइट क्रीम, जिसको हम कॉफ़ी क्रीम भी बोलते हैं. कॉफ़ी क्रीम. इट इज कंटेन 18 to 30%. 18 to 30% फैट. जिस क्रीम में 18 to 30% क्रीम रहेगा तो उसको लाइट क्रीम बोलते हैं या कॉफ़ी क्रीम बोलते हैं. ओके. Second, light whipping cream. (30 to 36%). 30 to 36 or 40% fat. Third is heavy cream. Heavy cream. 40 to 60%. Next is plastic cream. Ever 60% fat in plastic. Okay, it is clear. Write it. It is clear. Next is कर्ड. दही, जिसको हम लोग दही खाते हैं ना, कर्ड.
तो third is curd. Clean it. Okay. ऐसे समझो, मिल्क को क्या करते हैं, उसको 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर दिए। बॉयल करने के बाद उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं कि शाम को देखे होगे हमारे गांव में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में देखे होगे कि उसको हंडा, जो मिट्टी का हंडा बोलते हैं, हंडा घड़ा, उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा जामन बोलते हैं, जामन में स्टार्टर कल्चर, तो कल्चर हम ऐड करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद उसमें जो मिल्क जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया अपना प्रोसेस करके उसको सुबह जब देखते हैं तो कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। दही से फिर उसके बाद उसको मथनी लेके, जो मथनी होता है ना, मथनी लेके उसको हम मथते हैं, तो एक तो छाछ निकल गया, फिर क्रीम निकल गया। तो क्रीम के बारे में तो बता दिया क्रीम क्या होता है। अब दही, पहले दही डिस्कस कर लेते हैं, दही क्या होता है। कर्ड prepared by cooling boiled milk to body temperature and add to 10% starter after 6 to 8 hours and acidity is 0.9 to 1%. Curd. Okay, curd is clear. कर्ड में क्या करते हैं, उसमें हम बॉयल करते हैं 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर दैट मेंटेन टू रूम टेम्परेचर, ओके। फिर ऐड 10% स्टार्टर, जिसको हम लोग जामुन बोलते हैं, और 6 to 8 hours आफ्टर दैट कर्ड इज प्रिपेयर्ड, ओके। एसिडिटी क्या होता है, कर्ड का एसिडिटी 0.9 से 1% इसकी एसिडिटी होती है। एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब दोगे तो उसमें पूछते हैं कि एसिडिटी आप कर्ड, तो उसमें तुरंत टिक मार देना 0.9 to 1%, ओके। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ें। राइट इट। अब नेक्स्ट कर्ड तैयार हुआ मिल्क से कर्ड तैयार होने के बाद फिर उसके बाद क्रीम निकला। क्रीम से बनाते हैं हम लोग बटर मीन्स मक्खन। बटर, इसमें बटर में फैट कंटेंट जो होता है 80% होता है, 80% से ऊपर होता है जनरली। फैट कंटेंट 80%, ओके। बनता किससे है, मेड फ्रॉम सौर क्रीम, ओके। जब हम क्रीम को चर्न करते हैं, क्रीम को भी चर्न होता है, क्रीम को जब हम चर्न करते हैं, मशीन होती है, चर्निंग मशीन आती है, तो चर्निंग मशीन में जब हम उसको चर्न करते हैं तो बटर निकल के तैयार होके आता है, ओके।
इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ऑयल इन वाटर टाइप फॉर्म होता है। जैसे पानी में ऑयल डाल दो तो कैसे होगा, तो उसका यही हम एक एमल्सन फॉर्म होता है। ओके, इट इज क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट इज घी खाते हैं ना, घी। घी ए टाइप ऑफ क्लैरिफायर बटर is prepared by simmering butter and removing the residue. The texture, color and taste ghee depends on the quality of butter and the duration of the boiling. जब हम बटर को हीट करते हैं, देखते हैं ना घरों में हीट करते हैं तो उसके बाद घी निकल के आता है, तो वही कह रहे हैं। इसका डिफिनीशन लिखो डिफिनीशन। घी ए टाइप ऑफ क्लैरिफाइड बटर कॉमा is prepared by simmering butter and removing the residue. Full stop. The texture, color and taste of ghee depends on the quality of butter and the duration of boiling. कितने ड्यूरेशन तक हम बॉइलिंग करते हैं वो चीज़। ओके, घी इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज बटर मिल्क। बटर मिल्क समझते हो? बटर मिल्क मीन्स छाछ। बटर मिल्क में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बटर मिल्क का डिफिनीशन लिखो। बटर मिल्क वाज द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर चर्निंग बटर आउट ऑफ क्रीम। जब हम क्रीम को चर्न करते हैं, या जब कर्ड को हम जब उसको मथनी लेके मथते हैं तो उसमें पहले तो क्रीम निकला, फिर उसके बाद जो निकल के आया लिक्विड फॉर्म में उसको हम छाछ बोलते हैं, इन द सेंस बटर मिल्क। ओके, क्लियर? अब नेक्स्ट इज आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, हमने क्या क्या डिस्कस किया कि मिल्क क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिल्क क्या होता है, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। हेडिंग डालो, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में हम कैसे, मतलब जैसे बटर बना रहे हैं तो बटर में क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन 6 steps. First step is clarification. क्लैरिफिकेशन मीन्स जो भी उसमें डस्ट वगैरह है मिल्क में उसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफिकेशन। सेकेंड इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में एक प्रकार से हम फैट, जो मिल्क में जो फैट होते हैं, ग्लोबल्स होते हैं, उसको हम ब्रेक करते हैं, उसको हम ले आते हैं 2 माइक्रोन के नीचे। ठीक है। थर्ड इज पास्चुराइजेशन।
Pasteurization means heating up milk. Heating up milk. Fourth is fortification. Okay. Fifth is bleaching. Bleaching. Sixth is dehydration. Dehydration. Okay, clear? Clarification means क्लैरिफाई करते हैं. होमोजेनाइजेशन मीन्स एक प्रकार से मिक्सिंग करते हैं. पास्चुराइजेशन में हीटिंग करते हैं. फॉर्टिफिकेशन में इसके आगे का प्रोसेस जो होता है उसको करते हैं. राइट? इट इज क्लियर? ओके. क्लीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट क्लैरिफिकेशन. हेडिंग डालो क्लैरिफिकेशन. Clarification. Clarification means removal of small particles. Removal of small particles from milk, like ऐसे straw, hair, etc. ओके, क्लियर हो गया? किस टेम्परेचर पर हम इस क्लैरिफिकेशन करते हैं? इसमें डालो. ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन आते हैं. देखो, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, क्लियर हो गया? सेकेंड नीड डालो. होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन में जैसा मैंने बताया कि जो फैट का, जो मिल्क में जो फैट होते हैं उसका जो कभी कोई मतलब जिसकी साइज छोटी होती है फैट ग्लोबुल्स की, कोई बड़ी होती है 2 से लेके 14 माइक्रोन तक होता है. इसको तोड़ता क्या, ये क्या करता है होमोजेनाइजेशन की फैट ग्लोबुल्स को तोड़ के एक पैरामीटर के लिए क्या आता है 2 माइक्रोन. साइज होता है 2 माइक्रोन. ठीक है? इसमें होमोजेनाइजेशन में एक प्रेशर होता है, प्रेशर के थ्रू तोड़ता है. तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर होता है, इस प्रेशर जो होता है उसका 2000 से 2500 PSI प्रेशर का ये मापन होता है. क्लियर? अब थर्ड इज इम्पोर्टेंट पास्चुराइजेशन. इसको लिख लिए, इसको आप लोग लिख लिए. समझ क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो पास्चुराइजेशन.
अब हेडिंग डालो पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या करता है कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे मिल्क में, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें दो प्रोसेस होता है, एक एल टी मीन्स लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, एस टी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला एल टी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक, 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट। ओके, दूसरा ही एस टी मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। 72 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकेंड। इसको जो हम मिल्क को हीट करते हैं उसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 15 सेकेंड के लिए करते हैं, और एल टी में 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 30 मिनट के लिए उसको हीट करते हैं। इट इज़ क्लियर। एक इसमें अभी नया टेम्परेचर यूएसटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 149.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 सेकेंड या 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए उसको इतने टेम्परेचर पर मिल्क हीट कर देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक, क्लियर। राइट, देख लो इसको। टेम्परेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, इसको लिखो। अब नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन। इसको क्लीन कर दें। हेडिंग डालो फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मीन्स, लिखो डिफिनेशन लिखो, द एडिशन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन ए एंड डी, द एडिशन ऑफ फैट सोलुबल vitamins A and D to whole milk is optional but must for low fat milk and non fat milk। ये पास्चराइजेशन के पहले ये प्रयोग होता है। इसमें क्या करते हैं कि फैट एडिशन मतलब फैट सोलुबल विटामिन ए एंड डी जो होता है इसको ऐड करते हैं। बस इतना ही समझ लो, क्लियर। अब ये फोर्टिफिकेशन करते क्यों हैं? फोर्टिफिकेशन ये क्या करता है, इंक्रीज करता है विस्कोसिटी। जो मिल्क की जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क में पढ़ाया था ना कि विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन, जो दूध में गाढ़ापन आता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी।
तो विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए ये विटामिन ए एंड डी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी मेंटेन करने के लिए ये हम फोर्टिफिकेशन करते हैं। वो क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्या आता है? ब्लीचिंग। नेक्स्ट भी क्या हो? ब्लीचिंग। फोर्टिफिकेशन लिख लिया ना, फोर्टिफिकेशन क्लियर हो गया। अब डालो ब्लीचिंग। ब्लीचिंग ब्लीचिंग का डेफिनेशन लिखो, फिर समझाते हैं ब्लीचिंग का डेफिनेशन। ब्लीचिंग कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन मिल्क में भी डिजायरेबल। एक कैरोटीन होता है, कैरोटीन का नाम सुना है, जो मतलब पिगमेंट जो मिल्क में कलर बताता है। जैसे काउ मिल्क का कलर होता है येलोइश होता है, हल्का पीलापन होता है, और ये किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन कहाँ से मिलता है? जैसे सूर्य के प्रकाश से भी आता है, और घास खाते हैं तो घास से कैरोटीन आ जाता है मिल्क में। तो जब भैंस या गाय जब खाते हैं, एनिमल्स जब खाते हैं गाय भैंस को या दूध में खड़े रहते हैं, तो उससे कैरोटीन हमारे मिल्क में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारे कलर को पिगमेंट्स को बताता है। तो काउ मिल्क का कलर कौन सा होता है? येलोइश कलर होता है। बुफेलो मिल्क का क्या होता है? वाइटिश होता है। क्लियर? तो ब्लीचिंग। अब नेक्स्ट ही आ गया डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया? इट इज क्लियर? डिहाइड्रेशन लेकिन डालो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स कि हम मिल्क में जो वाटर होता है उसको जो हम रिमूव कर देते हैं, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में जब तैयार करते हैं तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है? मतलब ड्राइंग प्रोसेस ये होता है डिहाइड्रेशन। इट इज़ क्लियर? तो आज हम लोग क्या डिस्कस किए? व्हाट इज मिल्क, मिल्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिल्क, मिल्क के कितने प्रकार होते हैं, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, और मिल्क जब बनने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं, फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड, हीट कोगुलेटेड, कर्ड, जैसे फर्मेंटेड हो गया कर्ड, बटर, क्रीम, बटर मिल्क, ओके। नॉन फर्मेंटेड में टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क, तो ये सब डिस्कस किए। तो क्लियर हो गया ना? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इट इज क्लियर? ओके, थैंक यू, जय हिंद।